Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are studying our second chapter, that is the movement of substances. Last time we discussed the surface area to volume ratio. We saw that what is surface area and what is volume of a given object and how can we calculate the surface area and volume of that body, a shape or an object. Then we learned that as we divide a big block into smaller blocks, the surface area to volume ratio increases. Now, why cells are small and organisms are made up of cells? Now, question arises that multicellular organisms, the large size organisms, why they are not made up of a single large size big cell? Instead, they are composed of many small cells. The reason is this, that small cells have greater surface area to volume ratio, and this surface area to volume ratio has a very great value in the life of the living organisms because of this increase in the surface area to volume ratio, the efficiency of the cells increases. They exchange the materials more efficiently as compared to when they have a smaller surface area to volume ratio. In this diagram, a smaller block is mentioned here. Its dimensions are that each side has a length of 1. If we calculate its surface area, it comes to be 6. Its volume, if we calculate the volume, that comes to be 1, and overall surface area to volume ratio जो calculate करने के बाद हमारे सामने आती है, that comes to be 6. Now this is a big block, this one, and the dimensions जो हैं इसकी, the length of each of its side is 5. Unit are not mentioned here. When we calculate the total surface area of this block, that comes to be 150, its volume comes to be 125, and the surface area to volume ratio जो है वो इसकी calculate करके जब हम निकालते हैं तो that appears to be 1.2. Now if we divide this large block into smaller blocks and the dimension of each smaller block resembles this one, देखिए आप यहाँ पर हर स्मॉलर ब्लॉक की डायमेंशन उन्होंने 1 दी हुई है. अब हमने ये बिग साइज़ ब्लॉक को डिवाइड कर दिया है कितने, तकरीबन 125 स्मॉलर ब्लॉक्स. ठीक है, जब हमने इस बिग साइज़ ब्लॉक को स्मॉलर ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया दैट अपीयर्स टू बी 750, बट द टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हुआ. जो इस बिग ब्लॉक का वॉल्यूम था, जब हमने उसको स्मॉलर ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया तो वॉल्यूम फिर भी हमारा वही रहा. लेकिन अब हम अगर इसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स टू बी 6. मैनी फोल्ड जो है वो इंक्रीज़ कर गई है. हमने इस जो ये डायग्राम देखी, इसे हमने क्या कंक्लूड किया कि जब हम एक बिगर साइज़ ब्लॉक को स्मॉलर ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो देयर इज़ नो चेंज इन द वॉल्यूम stays constant, but their surface area increases, and as the surface area increases, their surface area to volume ratio also increases. Exchange of materials in cells. Surface area to volume ratio is important for cell efficiency. Cells exchange materials across their cell surface membrane. अब हर सेल जो है उसको कुछ मटेरियल रिक्वायर होता है और कुछ मटेरियल उसके लिए अनवांटेड होता है, सो वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करता है. देयर इज़ एन इनटेक ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंटर इनटू द सेल, एंड देयर आर सम अनवांटेड मटेरियल्स, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स लेफ्ट द सेल. सो देयर इज़ कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. If cells do not exchange material quickly enough, they will die. अब अगर उनकी नीड्स को वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती, जितनी उस सेल की डिमांड है, अगर उसके मुताबिक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड नहीं होंगे, इट मीन कि वो सफिशिएंट सप्लाई नहीं उसको पहुंच रही, तो उसकी वजह से क्या होगा कि द सेल विल डाई, वो फिनिश हो जाएगा. एज द सेल बिकम्स बिगर, surface area to volume ratio decreases. This thing we have learned in our previous lecture and also in our previous slides कि जो ही साइज़ बड़ा होता है किसी भी बॉडी का, उससे क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है. द लार्जेस्ट सेल
of the same shape has the smallest surface area to volume ratio. जो सबसे बड़ा सेल होगा, ठीक है, उसका सबसे कम surface area to volume ratio होगा. The rate of movement of substance across the surface of a cell depends on how big the area of cell surface membrane is available. किसी भी एक सेल जो है उसके जो अक्रॉस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होती हैं उसका रेट किस पर डिपेंड करता है? उसका रेट डिपेंड करता है कि उसकी कितनी सर्फेसेस या उसका कितना एरिया जो है दैट इज़ अवेलेबल दैट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड द एरिया दैट इज़ अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. जितनी ज़्यादा सर्फेसेस, जितना ज़्यादा एरिया एक्सचेंज के लिए अवेलेबल होगा उतना ही ज़्यादा वो जो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है वो ज़्यादा होगा उस सेल के अंदर. द ग्रेटर द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो द फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर अ गिवन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. अगर एक सेम कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है लेकिन अगर एक स्मॉलर सेल है तो उसमें क्या होगा? एफिशिएंटली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा. लेकिन अगर सेम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करने के लिए एक बिग साइज सेल होगा तो उसमें जो एक्सचेंज रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का रेट होगा दैट विल बी स्लोअर. सो द ग्रेटर द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो द फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर अ गिवन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये देखें, दिस इज़ अ स्मॉलर सेल. अब सेल ग्रो करता है. स्मॉलर सेल इंक्रीजेज इन साइज and as it grows its size increases. ठीक है. अब अगर हम कंपेयर करें तो ये जो सबसे छोटा सेल है it has the highest surface area और जो सबसे बड़ा सेल होगा उसका सबसे lowest surface area होगा. As the size increases, surface area decreases and as the size decreases, the surface area increases. The activities that the cell carries out for survival is known as metabolism. जितनी भी reactions होते हैं या जो सेल के अंदर जो भी activities हो रही होती हैं, जो भी processes हो रहे होते हैं, उनको हम as a net total क्या कहते हैं? They are known as the metabolism. एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स आर यूजुअली स्मॉल. अब जितने भी हमारे सेल्स हैं जो एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं या जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म का रेट बहुत ज़्यादा है उनका साइज़ यूजुअली स्मॉल होता है. स्मॉल साइज़ क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म का रेट बहुत ज़्यादा है. जब मेटाबॉलिज्म का रेट ज़्यादा है तो मीन दे नीड्स मोर न्यूट्रिएंट, दे नीड मोर मटेरियल. सो उस मटेरियल को ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करने के लिए उसके जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का रेट है दैट मस्ट बी फास्ट. अब ये फास्ट रेट होने के लिए मोर सरफेस एरिया शुड बी अवेलेबल. और हमने प्रीवियस स्लाइड्स में ये चीज़ जो है उसको हमने समझ लिया है कि जितना साइज़ छोटा होता है उतना ही सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो ज़्यादा होता है और उतना ही फिर जो एफिशिएंट होता है वो सेल और उसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो फास्टर रेट पर हो रही होती है. सो एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स आर यूजुअली स्मॉल. क्यों स्मॉल होते हैं? बिकॉज दे have large surface area to volume ratio. As the cells grow in size, their metabolism slows down. अब जो ही सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है उसका मेटाबॉलिज्म का रेट भी स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि अब वो अपना एक साइज़ अटेन कर चुका है. अब उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी इतनी रिक्वायर्ड नहीं, सिर्फ वही रिएक्शंस होने हैं जो कि उसको अलाइव रहने के लिए ज़रूरी हैं. सो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है. और अगर उसके सेल का साइज़ इंक्रीज़ होने के साथ जो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज़ कर रहा है फिर वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता क्योंकि सेल के इंक्रीज़ होने के साथ साथ उसका मेटाबॉलिज्म भी स्लोज डाउन हो रहा होता है. ठीक है. सेल्स स्टॉप ग्रोइंग व्हेन दे रीच अ मैक्सिमम साइज़. फिर जब एक सेल अपने एक मैक्सिमम साइज़ को अटेन कर लेता है तो उसके बाद फिर उसकी फर्दर ग्रोथ जो होती है दैट स्टॉप्स. उसके बाद वो फर्दर ग्रो नहीं करता क्योंकि उसने बस एक मैक्सिमम साइज़ को अटेन कर लिया है. ये साइज़ जो है इसका इतना रीज़नेबल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है कि वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स है वो उनको फुलफ़िल कर सकता है. ये देखें यहाँ 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं. ठीक है. इन 3 ब्लॉक्स में जो सेल A1 है, सेल्स हैं ये, सेल A1, सेल A2 एंड सेल A3. सेल A1 इज़ स्मॉल साइज्ड सेल
Cell A2 is medium sized cell and cell A3 is the big sized cell. जब हमने इसका surface area to volume ratio कैलकुलेट किया तो ये देखें यहाँ जो हमारा cell A1 है उसका आ रहा है 6:1, जो cell A2 है उसका आ रहा है 3:1 और जो cell A3 है उसका आ रहा है 2:1. So यहाँ again we have proved that as the size of the cell increases तो जो उसका surface area to volume ratio है that decreases. Some cells are specifically adapted to absorb material. कुछ सेल्स जो होते हैं वो उनका मेन फंक्शन ही ये होता है कि उन्होंने मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करना है. अब जब उनका मेन पर्पज़ और मेन फंक्शन उनका यही है कि उन्होंने एब्जॉर्प्शन करनी है, मीन्स कि उनके मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा रेट पर होना है. ठीक है, तो इसलिए फिर इन सेल्स की जो बॉडी शेप होती है दैट इज़ मॉडिफाइड एंड दैट इज़ अडेप्टेड फॉर दिस फंक्शन. ठीक, तो सम सेल्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड टू एब्जॉर्ब मटेरियल्स. Root hair cells has a long protrusion to increase absorption of water and mineral salts from the soil. ये हमने पीछे भी पढ़ा है इसको जब हमने osmosis और diffusion को पढ़ रहे थे कि जो root hair cells होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें elongated होते हैं वो. उस elongation की वजह से more surface is available to come in contact with the soil, जिसकी वजह से जो absorption of water और mineral salts है from the soil उसका rate increase कर जाता है. इस तरीके से जो red blood cells हैं they have flattened biconcave shape. जब flattened biconcave shape होगी that increases the surface area to volume ratio, जिसकी वजह से उन cells में ऑक्सीजन का uptake का जो rate है that increase. ठीक है, ये जो चीज़ है कि वो जब रेड ब्लड सेल्स फ्लैटेंड होते हैं तो उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज़ कर जाता है, वो इस डायग्राम से एक्सप्लेन होगा. ये देखें ये सेल ए, ठीक है, इसकी ये एक क्यूबॉइडल सेल है. क्यूबॉइड है क्योंकि इसकी ईच साइज़ हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर. जब हमने इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट किया सेल ए का तो वो अपीयर टू बी 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर. अब हमने इस सेल को ऊपर से प्रेस कर दिया है यानी कि ये फ्लैटन्ड हो गया है. ठीक है, द सेल इज़ फ्लैटन्ड. जब ये सेल फ्लैटन्ड होगा तो अब देखें इसकी हाइट रिड्यूस कर गई है, वो 1 सेंटीमीटर से 0.25 सेंटीमीटर हो गई है और इसकी जो लेंथ है और इसकी विड्थ है वो इंक्रीज़ कर गई है और वो कितनी हो गई है 2 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड. जब हम इस शेप का सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं तो दैट अपीयर्स टू बी 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर. लेकिन इन दोनों में जो चीज़ हमने देखनी है, नोटिस दैट द रेक्टेंगुलर सेल बी हैज़ लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. ठीक है, लेकिन इनका वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. चेंज क्या चीज़ हो रही है, चेंज इनका सरफेस एरिया हो रहा है, जिसकी वजह से फिर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी चेंज हो जाता है एंड सेल बी इज़ मोर एफिशिएंट एंड दिस इज़ मोर सूटेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. इसीलिए जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें अक्सर जो है उनकी जो बॉडी शेप होती है दैट इज़ फ्लैटन्ड, क्योंकि उनके अंदर वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता लोअर एनिमल्स में, तो उनकी बॉडी फ्लैटन्ड होती है ताकि मैक्सिमम सेल्स जो हैं उनकी बॉडी के वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएं एनवायरनमेंट के और वो अपनी अपनी नीड्स को एनवायरनमेंट से डायरेक्ट फुलफ़िल कर सकें. जो मटेरियल चाहिए उसको वो एब्जॉर्ब कर लें, जो नहीं चाहिए उसको वो रिलीज़ कर दें इनटू द एनवायरनमेंट, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, सफिशिएंट फॉर टुडे. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ज़रा कुछ और बातें जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.